रात का ये प्रहर और समय का प्रवाह, शहर की नब्ज में तकनीक का सार। जुड़ते हैं क्षितिज इन्फॉर्मेटिका लाइगमेंट फोरम में, जहां जंकरी का टाना बाना गढ़ाता है कल का आकार। ये द फ्लो ऑफ टाइम, बदलाव की पुकार, हर पल एक नई दिशा, एक नया विस्तार। समय का प्रवाह जारी रहेगा। Today, we're jumping into a pretty fascinating framework designed to help us navigate our incredibly complex world of information. It's called the 11D invariance matrix. I mean, think about it. We are just bombarded with content every single day, right? You've got news, movies, social media, all of it coming at you nonstop. In this absolute ocean of data, how can you possibly tell what's solid and what's just designed to mess with you? That's really the core question we're going to dig into. So here's our game plan. First, we'll talk about the problem, what the source material calls the misinformation crisis. Then we'll introduce this new way of looking at things, this new analytical lens. After that, we'll break down all 11 of its dimensions, see how it actually works, and wrap up with the ultimate goal, something called the methodocracy of media. All right, let's kick things off with Section 1, the misinformation crisis. And the issue here isn't just about fake news. It's a much deeper problem that the source calls intelligence entropy. You know, a simple thumbs up, thumbs down, or a 5-star rating, it just doesn't work anymore. We're up against these really sophisticated narratives that are built to get past our normal critical thinking. This intelligence entropy, it's basically the decay of our ability to see things clearly. And our old simple tools, well, they're just not up to the job. So, if the old way is broken, what's the fix? That brings us right into Section 2, where we introduce this powerful new idea, the 11-dimensional invariance matrix. And here's the crucial part. This matrix isn't just another rating system. You gotta think of it more like a diagnostic tool, like an MRI for information. It's designed to measure the deep-down core structure of a narrative, the stuff that doesn't change no matter how slick the packaging is. The whole point is to analyze its logic, its emotional pull, its ethics, before you let it sink in, or as the source puts it, before you download it. Okay, now we're getting to the heart of it. Section 3, the 11 dimensions of truth. Let's really pull this framework apart and see what makes it tick. So here it is, the whole thing in one view. Now, don't worry about memorizing all of this right now. The big takeaway here is just the sheer scope of this thing. We're going way beyond a simple fact check to look at everything from logic and emotion to consistency and even economic impact. So let's break these down into a few smaller, easier to digest groups. First up, the cognitive filters. Think of these as your brain's first line of defense. You've got the IQ, or logic quotient, which checks if an argument actually holds water, or if it's just a clever trick. That's sophistry. Then there's the EQ, the emotional quotient. This one spots when a story is using, say, sad music or a traumatic story just to manipulate you. And finally, the SQ, or social quotient, which figures out if a narrative is offering real criticism or if it's just trying to tear down trust in our institutions just for the heck of it. Okay, next are the ethical filters. The TQ, or truth quotient, is huge. It checks if the story actually lines up with the documented facts, fighting against historical revisionism. The VQ, the values quotient, looks at the story's moral compass. Does it reward good, constructive behavior, or does it kind of glorify bad actions? Then the AQ, the action quotient, asks a simple question. Does this story make you want to build something better, or does it just make you want to burn everything down? And finally, we have the structural and future-proofing filters. The FQ, or future quotient, counters all those doom and gloom narratives by rewarding stories that actually offer some hopeful, workable solutions. The XQ, or sensory quotient, is all about piercing the aesthetic mask. You know, when a movie has amazing special effects but the story itself is totally empty. The RQ, or resilience quotient, asks if a story empowers you to overcome things or if it just traps you in a victim mindset. So that's the theory. But what does this actually look like when you use it? Section 4, the matrix in action, shows us how these dimensions can work together to spot specific problems. Let's walk through a quick example. Imagine a news report comes in. The matrix scans it and finds it scores really high on the logic quotient. It sounds super smart, very well argued. But it scores near 0 on the truth quotient. The facts are just plain wrong. So what's the output? The matrix flags this as sophistry, an argument that sounds great but is built on a lie. And this is where it gets really powerful, because different patterns reveal different kinds of danger. We just saw sophistry, high logic, low truth.
But what about another one? Imagine a social media trend scores really high on the action quotient. It's pushing everyone to do something right now, but it has a rock-bottom social quotient, meaning it couldn't care less about social trust or stability. The Matrix diagnoses that as a recipe for mob instability. See? Two totally different threats, both made visible. And all of this brings us to the final, really big idea. Section 5, the methodocracy of media. This is what the whole system is trying to achieve. Now, the key thing to get here is that a methodocracy of media is not about censorship at all. In fact, it's the total opposite. It's about creating a system with so much deep, multi-layered transparency that deception just stands out. It becomes, as the source says, mathematically visible. Lies and manipulation just can't hide when they're being examined from 11 different angles at once. And that's why this should matter to you. A framework like this is designed to take power away from the people creating the stories and put it right back in your hands as the consumer of that information. It gives you the tools to see not just the facts, but the full cognitive impact a piece of media is designed to have on you before you even engage with it. It's about empowerment. So, we'll leave you with this final thought to chew on. Forget simple fact checks for a second. What if we really could build a system where deception itself, in all its sneaky forms, becomes transparent, measurable, and obvious to everyone? What would our world even look like then? मान लीजिए कोई अभी-अभी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देखकर सिनेमा घर से बाहर निकला है, मतलब $200 मिलियन के बजट वाली फिल्म। हाँ, जिसके विजुअल इफेक्ट्स एकदम दिमाग हिला देने वाले हों। बिल्कुल। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा कि बस रोंगटे खड़े हो जाएं। सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तरह से इंसान पूरी तरह एंटरटेन होकर लौट रहा है। एक परफेक्ट वीकेंड मूवी का अनुभव, है ना? सही कहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस 2.5 घंटे के दौरान उस फिल्म ने बड़ी ही चालाकी से दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वायरस डाउनलोड कर दिया है। अरे बाप रे! हाँ, एक मनोवैज्ञानिक हैक। और उससे भी बड़ी बात, क्या हो अगर हमारे पास ये साबित करने का एक बाकायदा गणितीय तरीका हो? देखिए, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की शुरुआत जैसा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन सच कहूं तो आज के मीडिया परिदृश्य की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम जो कुछ भी देख या सुन रहे हैं, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमारे सोचने के तरीके को रीवायर कर रहा है। और बिल्कुल इसी मुद्दे की गहराई में जाने के लिए हम आज का ये गहन विश्लेषण यानी ये डीप डाइव कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास इसके लिए बहुत सी दिलचस्प सामग्री भी है। एकदम सही। आज हमारे पास रिसर्च पेपर्स, मीडिया थ्योरी के आर्टिकल्स और कई विश्लेषणात्मक स्रोतों का एक पूरा स्टैक है। और इन सारे सोर्सेज को खंगालने के बाद एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है, जिसे 11 डायमेंशनल इनवेरिएंस मैट्रिक्स कहा गया है, मतलब 11D मैट्रिक्स। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि हम फिल्मों, खबरों या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को केवल 1 से 5 स्टार की रेटिंग देकर कैसे नहीं आंक सकते। हाँ, क्योंकि ये नया फ्रेमवर्क इस बात को मापता है कि हम और खासकर आज के युवा जो जानकारी डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी संरचनात्मक अखंडता क्या है, मतलब उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। सही कहा। देखिए, आमतौर पर जब हम मिस इन्फॉर्मेशन या भ्रामक जानकारी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई फेक न्यूज़ फॉरवर्ड कर देना ही मिस इन्फॉर्मेशन है। जबकि हमारे स्रोत एक बहुत ही गहरे स्तर की बात कर रहे हैं, जिसे इंफॉर्मेशन डिके या सूचनाओं का क्षय कहा गया है। मतलब जानकारी का अंदर ही अंदर सड़ना। एकदम सही। ये 11D मैट्रिक्स एक तरह के फिल्टर की तरह काम करता है, या कहिए एक एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल है जो ये पकड़ता है कि कोई कहानी हमारे दिमाग को कैसे खोखला कर रही है। हाँ, ये मापता है कि मीडिया किस तरह से इंटेलिजेंस एंट्रोपी यानी हमारी बुद्धिमत्ता को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रहा है। चलिए फिर इसे बिना किसी देरी के डिकोड करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स 11 अलग-अलग पैमानों पर काम करता है तो इसकी शुरुआत यकीनन बुनियादी चीजों से ही होगी। बिल्कुल, उन बुनियादी तरीकों से जिनसे मीडिया हमारे दिमाग और दिल को सबसे पहले हैक करता है।
हमारे सोर्सेज में सबसे पहले IQ यानी लॉजिक कोशेंट और TQ यानी ट्रूथ कोशेंट का जिक्र है। हाँ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ये सोच रहा था ये दोनों फिल्टर असल में क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम सबसे पहले IQ यानी लॉजिक कोशेंट की बात करें तो इसका सीधा सा काम है सॉफिस्ट्री या कुतर्क को रोकना। कुतर्क मतलब बेवजह की बहस। हाँ, या ऐसे प्लॉट्स जो तर्क के बुनियादी नियमों का ही उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक टेक थ्रिलर सीरीज है। आजकल तो बहुत बनती है ऐसी सीरीज। बिल्कुल, उसमें दिखाया जा रहा है कि सरकार द्वारा जनता की हर पल निगरानी करना यानी मास सर्विलांस बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, और इसे सही ठहराने के लिए क्या करते हैं वो सीरीज में कुछ अजीब सा नकली विज्ञान या छद्म तर्क परोसते हैं। अब अगर आप इसे 11D मैट्रिक्स से गुजारेंगे तो मैट्रिक्स इसे पकड़ लेगा? एकदम। IQ फिल्टर इसे तुरंत लो IQ फिडेलिटी के लिए फ्लैग कर देगा, क्योंकि इसका आधार ही तार्किक रूप से भ्रष्ट है। अरे वाह, मतलब कोई भी चालाक किरदार सिर्फ भारी भरकम शब्द बोलकर अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों को सही नहीं ठहरा सकता। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन अब TQ यानी ट्रूथ कोशेंट पर आते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि ये ऐतिहासिक सच्चाई और सार्वभौमिक तथ्यों से जुड़ा है। हाँ, ऐतिहासिक अखंडता से। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन है। मतलब सच क्या है, ये कौन तय करता है? क्या ये TQ सिर्फ सेंसरशिप का एक नया दरवाजा नहीं है? ये बहुत ही वाजिब चिंता है ना? क्योंकि कल को कोई भी सत्ता कह सकती है कि हमें ये फिल्म पसंद नहीं आई, इसलिए इसका TQ 0 है। मैं समझती हूँ, लेकिन देखिए यहाँ TQ का मतलब किसी सरकार द्वारा प्रायोजित सच से नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है इसका मतलब? ये हिस्टोरिकल रिविजनिज्म को पकड़ता है। मतलब इतिहास को पूरी तरह से मिटाने या बदलने की उन कोशिशों को जो सर्वविदित तथ्यों के खिलाफ है। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक बहुत बड़े बजट की ऐतिहासिक फिल्म बनती है, लेकिन वो फिल्म जानबूझकर किसी एक पूरे समुदाय के ऐतिहासिक योगदान को ही स्क्रीन से गायब कर देती है। जैसे उनका कभी वजूद ही न रहा हो। एकदम सही। उस फिल्म का बजट चाहे जितना बड़ा हो, प्रोडक्शन कितना भी भव्य हो, उसका TQ स्कोर 0 ही होगा। समझ गया। तो ये सेंसरशिप नहीं है, ये कहानी में उस ऐतिहासिक अखंडता की मांग है जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते। ओके, तो ये तथ्यों के साथ खेलवाड़ को रोकने के लिए है। तर्क यानी IQ और तथ्य यानी TQ तो हो गए। हाँ, अब अगले आयाम पर चलते हैं। लेकिन इस मैट्रिक्स का अगला हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। आप EQ यानी इमोशनल कोशेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हर कहानी, हर फिल्म का मुख्य काम ही भावनाएं जगाना होता है। हाँ, बिना भावनाओं की कहानी कैसी? वही तो। अगर कोई फिल्म रुला नहीं सकती, डरा नहीं सकती, तो वो तो एक फ्लॉप कहानी हुई। तो फिर एक बेहतरीन इमोशनल कहानी और इस मैट्रिक्स में बताए गए वेपनाइज्ड सेंटिमेंटलिज्म के बीच क्या लकीर है? वेपनाइज्ड सेंटिमेंटलिज्म मतलब भावनाओं को हथियार बनाना। ये इस पूरे मैट्रिक्स का सबसे अहम बिंदु है। कैसे? भावनाओं का होना तो गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन EQ ये मापता है कि क्या उन भावनाओं का इस्तेमाल क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच को सुन करने के लिए किया जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग को सुन करना। हाँ, वेपनाइज्ड सेंटिमेंटलिज्म तब होता है जब भावनाएं एक स्मोक स्क्रीन यानी एक धुएं के पर्दे का काम करती हैं। क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकती हैं? ऐसा कब होता है कि हम रो भी रहे हों और हमारा ब्रेन वॉश भी हो रहा हो? बिल्कुल। मान लीजिए कोई कहानी एक हिंसक व्यवस्था परिवर्तन या किसी गैरकानूनी तख्तापलट को सही ठहराना चाहती है। ठीक है, अगर सीधे कहेंगे तो लोग विरोध करेंगे। एकदम सही। तो वे क्या करेंगे? वे स्क्रीन पर किसी मासूम बच्चे की पीड़ा दिखाएंगे, उसके आघात को बहुत ही मार्मिक संगीत के साथ पेश करेंगे। अरे बाप रे! हाँ, एक दर्शक के तौर पर आप उस बच्चे के दुख से इतने जुड़ जाते हैं कि आप भावुक हो जाते हैं और उस तख्तापलट के असली खतरनाक मकसदों पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। EQ मैट्रिक्स इसी धोखे को मापता है। यह पकड़ता है कि भावनाएं कहानी का स्वाभाविक हिस्सा है या उनका इस्तेमाल दिमाग को बाईपास करके एजेंडा थोपने के लिए हो रहा है। ये वाकई डरावना है। मतलब बैकग्राउंड में बजने वाला वो रुला देने वाला वायलिन असल में हमारे दिमाग के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहा होता है। बिल्कुल, और ये बहुत आम है आजकल।
अब देखिए, यहाँ से चर्चा एक बड़ा मोड़ देती है, क्योंकि अभी तक हमने एक अकेले इंसान की बात की। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर। लेकिन जब ये हैक किया हुआ इंसान, जिसकी भावनाओं और तर्क के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सिनेमा घर से बाहर निकलकर समाज में जाता है, तो क्या होता है? और यहीं से मैट्रिक्स के अगले 3 आयाम सामने आते हैं, SQ, VQ और CQ। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत कहते हैं कि इसका सीधा असर हमारे समाज और संस्कृति पर पड़ता है। और सच कहूं तो जब हम सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन का असली खतरा सामने आता है। तो इसमें सबसे पहला है SQ। हाँ, SQ यानी सोशल क्वेश्चंट। ये मुख्य रूप से इंस्टीट्यूशनल इरोजन या संस्थागत पतन को मापता है। मतलब संस्थाओं को बर्बाद करना। हाँ, ये मैट्रिक्स उन कहानियों के बीच बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है जो भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं और जो महज अराजकता फैलाती हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी फिल्में तो हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। हाँ, लेकिन एक फर्क है। अगर कोई कहानी सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर करती है और उसे सुधारने का एक तार्किक रास्ता दिखाती है, तो वो एक अच्छी कहानी है। बिल्कुल। लेकिन अगर कहानी ये कह रही है कि सिस्टम खराब है, इसलिए सबको जलाकर राख कर दो, बिना कोई बेहतर विकल्प दिए। एकदम सही, पूरी तरह से अराजकता फैला दो और बुनियादी नागरिक विश्वास को ही खत्म कर दो, तो उस कहानी का SQ बहुत कम होगा। मतलब वो समाज को सुधार नहीं रही, उसे तोड़ रही है। हाँ, समझ गया। और इसी से जुड़ा है VQ, यानी वैल्यूज क्वोशंट, जो सीधे हमारे नैतिकता पर प्रहार करता है। हाँ, सोर्सेस में लिखा है कि क्या कहानी परजीवी व्यवहार को इनाम देती है? परजीवी व्यवहार मतलब पैरासिटिक बिहेवियर। इसे मैं अपने तरीके से डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक फिल्म में जो मुख्य किरदार या हीरो है वो आगे बढ़ने के लिए अपने हर दोस्त को धोखा देता है। हर सहयोगी के पीठ पे छुरा घूंपता है। बिल्कुल। और अंत में फिल्म उसे एक बेहद सफल ग्लैमरस विजेता के रूप में पेश करती है। इस मैट्रिक्स के हिसाब से क्या ये एथिकल डिके है या नैतिक पतन है? 100%। ये बुराई को ग्लैमरस बनाना हुआ, यानी लो VQ। हाँ, अगर फिल्म उसी कहानी को एक त्रासदी की तरह दिखाए कि देखो, इस इंसान ने दुनिया तो जीत ली लेकिन अपनी आत्मा खो दी, तब बात अलग है। आपने बिल्कुल सटीक बात पकड़ी। और मूल्यों के इसी पतन के साथ जो तीसरी चीज खतरे में आती है वो है संस्कृति। इसलिए अगला आयाम है CQ, यानी कल्चरल कोशेंट। आज के समय में जब कंटेंट पूरी दुनिया के लिए एक साथ बनता है तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जिसे आइडेंटिटी इरेजर या पहचान मिटाना कहा जाता है। तो CQ इसे कैसे रोकता है? CQ यह सुनिश्चित करता है कि ग्लोबलिस्ट ट्रोप्स के चक्कर में स्थानीय विरासत की बारीकियां खत्म न हो जाएं। अरे, ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे दुनिया भर के बेहतरीन विविधता से भरे स्थानीय व्यंजनों को मेन्यू से हटा दिया जाए। हाँ, और उनकी जगह क्या लाया जाए? हर जगह एक ही स्वाद वाला नीरस फास्ट फूड परोस दिया जाए। हाँ, उससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन उस भोजन की जो आत्मा थी, जो सांस्कृतिक इतिहास था, वो खत्म हो जाएगा। ये फास्ट फूड वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। फिल्में भी आजकल ऐसा ही कर रही हैं, सबको एक ही सांचे में ढाल रही हैं। ग्लोबल अपील के नाम पर बिल्कुल संस्कृतियों को एक उथले कैरिकेचर में बदल दिया जाता है। CQ मैट्रिक्स इसी समरूपता या होमोजेनाइजेशन के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। जी भी। तो अब तक हमने देखा कि कैसे लॉजिक, भावनाएं, समाज और संस्कृति को ये मैट्रिक्स परखता है। हाँ, ये बहुत गहरे पैमाने हैं। लेकिन अब एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। ये सारी जानकारी, ये सारा मीडिया अंततः युवाओं को किस तरह के एक्शन या कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है? ये सबसे अहम सवाल है। क्या ये मीडिया उन्हें भीतर से तोड़ रहा है या भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत बना रहा है? हमारे स्रोत इसके लिए 3 नए पैमाने देते हैं, AQ, FQ और RQ। देखिए, किसी भी नैरेटिव या कहानी का असली इम्तिहान यही होता है कि वो लोगों को क्या करने पर मजबूर करती है। तो AQ क्या है? AQ यानी एक्शन कोशेंट। ये रेडिकलाइजेशन बनाम रिफॉर्म यानी कट्टरपंथी और सुधार के बीच के अंतर को मापता है। मतलब क्या फिल्म युवाओं को एक नई बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित करती? हाँ, जो कि हाई IQ है, या फिर वो सिर्फ एक अंधे गुस्से में आकर सब कुछ तबाह करने के लिए उकसाती है, जो कि लो IQ है। और इसके बाद आता है FQ यानी फ्यूचर कोशेंट और नो फ्यूचर ट्रोप की समस्या। आज के युवाओं में भविष्य को लेकर जो भयानक चिंता है ना, हाँ, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या आर्थिक संकट, उसे डिस्टोपियन डिस्पेयर कहा जाता है। एक हाई FQ वाली कहानी वो है जो व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। हम इंसानों को डिस्टोपियन फिल्में बहुत पसंद आती हैं। डार्क, निराशाजनक भविष्य की कहानियां जहां सब कुछ खत्म हो चुका है,
वे बॉक्स ऑफिस पर अरबों डॉलर कमाती हैं। ये बात तो है। तो क्या ये सारी डिस्टोपियन फिल्में बुली हैं? क्या वे समाज में सिर्फ डिस्टोपियन निराशा फैला रही हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ऐसा नहीं है कि हर डिस्टोपियन कहानी बुरी होती है। यहीं पर RQ यानी रेजिलियंस कोशेंट चित्र में आता है। रेजिलियंस मतलब लचीलापन। हाँ, कोई कहानी एक बहुत ही डार्क डिस्टोपियन सेटिंग में हो सकती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो फिल्म विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए युवाओं को मानसिक उपकरण प्रदान करती है, या फिर वो केवल ठहराव और पीड़ित होने की मानसिकता को बढ़ावा देती है? बिल्कुल। मतलब क्या वो सिर्फ घाव दिखा रही है या मरहम भी दे रही है? एकदम सही पकड़ा आपने। इसे ऐसे समझिए, लो FQ और लो RQ वाला मीडिया एक बीमार मरीज को एंटीबायोटिक्स देने के बजाय सिर्फ पेन किलर्स देने जैसा है। पेन किलर दर्द तो कम कर देता है। हाँ, पेन किलर उस डार्क भविष्य के दर्द को थोड़ी देर के लिए सुन कर देता है। आपको ये महसूस कराता है कि हाँ, दुनिया खराब है, तुम पीड़ित हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो बीमारी का इलाज नहीं करता। नहीं करता, बस एक विक्टिमहुड नैरेटिव तैयार करता है। इसके विपरीत एक हाई RQ वाली फिल्म युवाओं को ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने खराब हों, नायक हार नहीं मानता। वहाँ मेथोडोक्रेसी के सिद्धांतों का उपयोग करके संस्थागत भ्रष्टाचार से लड़ता है। बिल्कुल। ये शब्द मेथोडोक्रेसी हमारे सोर्सेस में कई बार आया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करें। आसान शब्दों में मेथोडोक्रेसी का मतलब है किसी एक चमत्कारी, मसीहा या भ्रष्ट व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय, मतलब किसी सुपर हीरो का इंतजार न करना। हाँ। सच्चाई तक पहुंचने और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक पारदर्शी, संरचित तरीके का इस्तेमाल करना, एक मेथड का। अच्छा। तो हाई RQ वाली कहानियां युवाओं को यही लचीलापन सिखाती हैं। बिल्कुल, वे उन्हें पीड़ित नहीं समाधानकर्ता बनाती हैं। ये वाकई बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन यार, अब कमरे में मौजूद सबसे बड़े हाथी की बात करते हैं। मतलब ये कि अगर इन बड़े बजट की फिल्मों, शोज और प्रोपागेंडा कहानियों में इतने सारे पैमानों की कमी है, अगर उनका IQ, TQ, VQ सब कम है, हाँ। तो वे इतनी सफल कैसे होती हैं? लोग उन्हें पागलों की तरह क्यों देखते हैं? इसका जवाब है उनका बाहरी आवरण, और यही हमारा 8वां आयाम आता है, XQ यानी सेंसरी कोशेंट, जिसे हमारे स्रोतों में एस्थेटिक मास्क या सौंदर्यवादी मुखौटा कहा गया है। एकदम सही। ये वो हिस्सा है जहां एक फिल्म जिसके पास कोई सुसंगत दर्शन नहीं है, जो अंदर से एकदम खोखली है, वो अपने उस खोखलेपन को हाई एंड विजुअल इफेक्ट्स और कान फाड़ देने वाले साउंड डिजाइन के पीछे छिपा लेती है। सोर्सेज इसे हाई ग्लॉस नॉइज या चमकदार शोर कहते हैं। बिल्कुल, यह सेंसरी ओवरलोड है जो आपके दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देता। और इस चमकदार शोर के तिलिस्म को तोड़ने के लिए हमें अंतिम सत्य की कसौटी की आवश्यकता होती है, जो है हमारा 11वां और सबसे महत्वपूर्ण आयाम, CQ यानी मेटा कांस्टेंट। तो ये मेटा कांस्टेंट आखिर क्या मापता है? ये इस पूरे 11D मैट्रिक्स का मास्टर स्ट्रोक है ना? हाँ, यह मापता है कि क्या कहानी वास्तविकता के अंतर्निहित स्ट्रक्चरल कांस्टेंट्स को स्वीकार करती है। मतलब यह सुनिश्चित करता है कि कहानी एंट्रोपी यानी बिखराव और व्यवस्था यानी ऑर्डर के बीच संतुलन का सम्मान करे। अच्छा। क्या वो ब्रह्मांड के उन मूलभूत नियमों को मानती है जो जीवन को बनाए रखते हैं, या ये पूरी तरह से शून्यता पर आधारित है? इसे मैं अपनी एक कार वाली एनालॉजी से समझाता हूँ, जो मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, बताइए। XQ यानी वो सेंसरी कोशेंट एक एकदम खटारा कार पर किया गया बहुत ही चमकदार और महंगा पेंट है। बाहर से बहुत सुंदर। हाँ, वो बाहर से इतनी शानदार दिख रही है कि आपको 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार का भ्रम दे रही है, लेकिन अंदर से खटारा। लेकिन SQ यानी वो मेटा कांस्टेंट भौतिकी और ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के वो शाश्वत नियम है जिनके बिना कार चल ही नहीं सकती। एकदम सही, जिनके बिना चाहे कार कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। वो कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत खूब, यह एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। बिना SQ के कोई भी कहानी अंततः खोखली ही साबित होगी, चाहे उसका XQ यानी विजुअल्स कितने भी लुभावने क्यों ना हो। तो हमने इस 11 आयामी इनवेरिएंस मैट्रिक्स के इन सभी हिस्सों को गहराई से समझ लिया। हाँ, हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण पैमानों को कवर कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, तो आखिर इन सब का मतलब क्या है?
हम इस भारी भरकम जानकारी का क्या करें? ये सवाल तो हर श्रोता के मन में होगा। बिल्कुल। एक आम इंसान जो रोज सुबह उठकर अपना फोन चेक करता है, उसके लिए इसका क्या व्यवहारिक उपयोग है? देखिए, जब आम जनता इस 11D लेंस से अपने चारों तरफ मौजूद सूचनाओं को देखना शुरू करती है, तो चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार? मिस इन्फॉर्मेशन या धोखे के छिपने की कोई जगह नहीं बचती। चीजें गणितीय रूप से पारदर्शी हो जाती हैं। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण पर टेस्ट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए व्हाट्सएप पर एक बहुत ही वायरल मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। वो मैसेज किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर बहुत ही तार्किक और बुद्धिमानी भरे शब्दों में लिखा गया है, तो उसका IQ यानी लॉजिक हाई है। हाँ, पढ़ने में एकदम सही लग रहा है। लेकिन उसमें जो इतिहास बताया गया है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा है, तो उसका TQ यानी ट्रूथ बहुत कम हो गया। बिल्कुल। साथ ही वो मैसेज पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब हाई EQ, और वो लोगों से कह रहा है कि सड़कों पर उतरो और हंगामा करो, मतलब हाई AQ यानी एक्शन। लेकिन वो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ रहा है। हाँ, यानी उसका SQ जो सोशल क्वेश्चन है वो 0 है। एकदम सही विश्लेषण। अगर आप उस वायरल मैसेज को इस मैट्रिक्स में डालेंगे तो ये तुरंत साफ हो जाएगा कि ये कोई सच्ची खबर या क्रांति का आह्वान नहीं है। तो ये क्या है? ये मॉब इंस्टेबिलिटी यानी भीड़ को भड़काने और अस्थिरता फैलाने की एक सोची समझी साजिश है। ये कुतर्क और धोखे का एक कॉकटेल है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है यार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स सत्ता का हस्तांतरण कर रहा है। बिल्कुल। ये ताकत उन कथाकारों या नैरेटिव क्रिएटर्स से छीन रहा है जो ये तय करते थे कि हमें क्या सोचना चाहिए, और उसे वापस हम जैसे सूचना उपयोक्ताओं के हाथों में सौंप रहा है। हाँ, अब हम केवल क्या 5 स्टार रेटिंग के आधार पर बेवकूफ नहीं बनेंगे। और यही वो मेथोडोक्रेसी ऑफ मीडिया है जिसकी हमारे स्रोत बात करते हैं। हाँ ना जी। एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई को बचाने के लिए किसी सरकारी सेंसर बोर्ड या किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुआयामी पारदर्शिता से ही सच्चाई की रक्षा होती है। एकदम सही। जब आप इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी प्रोपेगेंडा या मानसिक धोखा गणितीय रूप से दृश्यमान हो जाता है। मतलब आप उस धोखे को आंकड़ों में देख सकते हैं। हाँ। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये 11D इनवेरिएंस मैट्रिक्स केवल फिल्मों की समीक्षा करने वाला कोई फैंसी टूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे दिमाग को उस इंफॉर्मेशन डीके या बुद्धिमत्ता के शरण से बचाने का एक मजबूत कवच है, जो आज के इस डिजिटल युग में हर स्क्रीन से हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये हमें एक निष्क्रिय दर्शक से एक सतर्क और जागरूक उपभोक्ता में बदल देता है। बिल्कुल। मैं हमेशा की तरह एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, आज हमने फिल्मों और खबरों की बात की, लेकिन अगर ये 11D मैट्रिक्स मीडिया में छुपे धोखे को गणितीय रूप से दृश्यमान बना सकता है, हाँ, तो क्या होगा अगर हम इन्हीं 11 पैमानों का उपयोग अपने रोजमर्रा के सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर करें? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर उस अनगिनत कंटेंट पर करें जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पलक झपकते ही जनरेट कर रहा है। क्या हमारी मौजूदा डिजिटल दुनिया का पूरा ढांचा इस स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी टेस्ट में पास हो पाएगा? या जब हम उस पर ये 11 आयामी एक्सरे डालेंगे तो वो पूरी तरह से इंटेलिजेंस एंट्रोपी से ग्रस्त पाया जाएगा? सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी कोई स्क्रीन पर कुछ स्क्रॉल करे तो खुद से ये सवाल जरूर पूछे। सोचने वाली बात है ना?